Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes of ML Government Group of Schools. So students, up to now we have done with 3 poems in poetry section from the Beehive. From today we are taking up your first prose chapter, that is the fun they had. So and this story is written by the very famous science fiction writer and also story writer Isaac Asimov. You know, scholar Isaac Asimov was one of the 20th century's most prolific writers, writing in many genres. He was known for sci-fi works like Foundation and Me, Robot, and many other. Isaac Asimov was a medical writer as well as professor. He was reputed for writing some books on science fictions. Most of his books are simple with little description and little or functional dialogues. He was born on 2nd January 1920 in Petrovichi, Russia. Isaac Asimov immigrated with his family to the United States and became a biochemistry professor while pursuing writing. He published his first novel, Pebble in the Sky, in 1950. An immensely prolific author who penned nearly 500 books, he published influential sci-fi works. Sci-fi means science fiction. Sci-fi works like I, Robot, and the Foundation trilogy, as well as books on a variety of other genres. Asimov died in New York City on April 6, 1992. The Fun They Had is one of the most popular fictional works written by him. So students, let us try to understand the basics of the story, that is the fun they had. Fun they had is a young girl Margie's diary entry. The very important point it is. It is the diary entry of a young girl whose name was Margie. It is 13 days and 158 years ahead as on 4 May 2008. आज से लगभग 158 साल बाद की जो दुनिया होगी उस टाइम से हमको अटैच करती है ये स्टोरी। मीन्ट ये स्टोरी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, आज की दुनिया से अलग है। आज अभी हम 2018 या 2019 या 2020 में हैं। आज की अगर हम डेट देखें तो आज 10 मई 2020 है। और अगर मार्गी की डायरी एंट्री की डेट हम देखेंगे स्टोरी में, स्टोरी की जब हम शुरू करेंगे उसमें पाएंगे कि वो जो डायरी एंट्री थी उस पर जो डेट पड़ा हुआ था वो दैट वाज 17 मई 2157। मतलब हम लोग अभी 21वीं सेंचुरी में हैं और ये स्टोरी हमें 22nd स्टोरी से कनेक्ट करती है। मीन्ट फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे या समझने का प्रयास करिए। द स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। मैंने एक आई हैड ट्राई टू गिव यू वन मोर क्लू
ये फ्यूचर से कनेक्ट कर रही है हमको, जहाँ पर कि कंप्यूटर्स ज़्यादातर रोल प्ले करेंगे। नो डाउट आज भी ज़्यादातर रोल कंप्यूटर्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन 22nd सेंचुरी के जिस वर्ल्ड से ये स्टोरी हमको कनेक्ट कर रही है, वहाँ पे कंप्यूटर का रोल इतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आज बैंक में, आज स्कूल्स में भी, हर जगह कंप्यूटर अपना रोल प्ले कर रहा है। इवन वी आर प्रोवाइडेड ऑडियो विजुअल क्लासेस, एंड नाउअडेज वी आर डूइंग विथ ऑनलाइन क्लासेस। In this coronavirus spread, our coronavirus pandemic situation, we are trying to learn through online classes. हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इवन देन हम लोगों का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम जिस दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं इन द स्टोरी, वहाँ के स्कूल्स और आज के जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ। अगर हम आज के समय की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट टुडे, इन दैट कंडीशन, व्हाट आर स्कूल्स? नाउ ट्राई टू थिंक, व्हाट आर स्कूल्स? स्कूल इज अ बिल्डिंग, इज अ पब्लिक बिल्डिंग that has been built up to provide the education of the education to the children. Children from the locality gathers over there, and as per their age and understanding level, they are assigned a class, and in those classes several students sits and a teacher, now here a teacher meant human teacher, a teacher goes and imparts the education to them. आज का जो education system है, according to that, this is the school. Am I right? आज तो स्कूल यही है ना भाई। आज तो स्कूल क्या है? स्कूल एक बिल्डिंग है, एक पब्लिक बिल्डिंग है, जहाँ पर कि उस लोकेलिटी के सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं और उन बच्चों को स्कूल अथॉरिटीज़ उनकी एज और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक एक क्लास असाइन कर देता है। हर एक क्लास में सेम एज, लगभग समथिंग अबाउट सेम एज और सेम अंडरस्टैंडिंग लेवल के बच्चे इकट्ठा होते हैं और उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स जाते हैं और उन्हें जो सिलेबस है उसके मुताबिक एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है। दिस इज द स्कूल सिस्टम एट द प्रेजेंट टाइम, बट एट द टाइम रिगार्डिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक इन द स्टोरी, वहाँ पे स्कूल्स ऐसे नहीं होंगे। In that system, the schools will not be alike as it is today. So कैसे होंगे? वहाँ पे in that time, in 20th century, according to diary entry 17 May 2157, in that time, the school will be a room that is set in each and every house. स्कूल क्या होगा? स्कूल एक रूम होगा जो हर एक घर में सेट किया जाएगा। मीन्स जैसे हमारे घरों में किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, वैसे ही स्कूल होगा एक, हर एक बच्चे के लिए। हर एक घर में बच्चे को एडुकेट करने के लिए एक स्कूल होगा, एंड दैट स्कूल विल बी फैसिलिटेटेड विथ द computers,
visual classrooms, and a robotic teacher. That has been well uh, portrayed over here, well visualized in this, that in this pic that is in front of you. Just try to see it and see and understand it. Here you can see the schools of the future has been shown. Visual classroom, learning through computers, and the teacher will not be a human being over there. Robotic teacher. Books will not be as we are having today. Books will be the e-book, electronic books that will be on the computers itself. In this way, 22nd century schools has been portrayed. Meant आने वाले टाइम में स्कूल्स आज की तरह नहीं होंगे, आज की तरह एक पब्लिक बिल्डिंग नहीं होगी, बल्कि ये स्कूल हर एक व्यक्ति के घर में होंगे। और हर एक घर में जो स्कूल होगा उसमें रोबोटिक टीचर होगा, उसमें ऑडियो विजुअल क्लासरूम होंगे, लर्निंग कंप्यूटर्स के माध्यम से होगी, मूविंग ई टेक्स्ट आपके सामने आएंगे। और जो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट लर्निंग कैपेसिटी द कंप्यूटर्स विल सेट द क्लासेस, वर्कशीट्स and everything. That will be explained to you in the forthcoming chapter. So in this way you can see that we are going to learn the futuristic school. And also one thing, आप सबके दिल में जो स्कूल्स को लेकर गुस्सा रहता है, स्कूल से लेके स्कूल्स नहीं जाना है, स्कूल इंटरटेनिंग नहीं होते हैं, आप जो आने वाले टाइम के स्कूल्स हैं उनमें और आज के स्कूल्स में जो डिफरेंसेस पाएंगे, उसके बाद आपको अपने स्कूल से प्यार हो जाएगा. यू विल फॉल इन लव विद योर स्कूल एंड दिस स्कूल लाइफ. We know very well that school life is very entertaining life. So here we learn about the kind of education prevalent in 22nd century, when the traditional system of education has been replaced with the new ones. There are no school buildings and no human teacher. The mechanical teacher, that is television screen, acts as a teacher. It can be quickened and solved down according to the needs of the individual. The system has its own advantages, but it is deprived of all fun that we have in the schools. और तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज की स्कूल लाइफ में जो फन आपको मिलता है वो फन उन बच्चों को नहीं मिलेगा जो आने वाले टाइम में इन मैकेनिकल टीचर के माध्यम से टेलीविज़न स्क्रीन पे घर के ही एक विजुअल क्लासरूम में एजुकेशन गेट करेंगे. बट इट इज डिवाइड ऑफ, यस, स्कूल स्टूडेंट्स कैन नॉट गो टू स्कूल टुगेदर. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उन बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन की कमी होगी, क्योंकि वो किसी और बच्चे से मिलेंगे ही नहीं, उनके अंदर सोशलाइजेशन की कमी होगी. दे विल नॉट गो टू स्कूल टुगेदर, दे कैन नॉट स्टडी एंड प्ले टुगेदर. देयर इज नो laughing and shouting. No doubt Margie, thinking of the old schools, feels sad. Studying before the TV screen is quite lonesome and boring. The author feels that no system is perfect. Here you will find out a view of the author that no system is going to be perfect. So you will find out that this is a very light story. Very first point, it is set in the future. It will make all of you
love school. This story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. The setting up the story is in the future when perhaps there will be no school, no books. Now, how those students will miss going to school and will feel that their ancestors, that is the present generation, भाई 22nd सेंचुरी के एंसेस्टर्स तो हम लोग ही होंगे ना, हम आप सब एंसेस्टर्स होंगे आने वाले टाइम के, दैट इज जिसके बारे में कहानी लिखी गई है. यू ऑल हैव यू ऑल हैड फन गोइंग टू स्कूल. हम सब कितना एंजॉय किए थे अपने स्कूल्स में. आप सब कितना एंजॉय करते हो अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ फन करते हो, मस्ती करते हो. आने वाले टाइम में जो बच्चे घर में रह करके घर के ही एक कमरे में ऑडियो विजुअल क्लासरूम के माध्यम से स्टडी गेट करेंगे, रोबोटिक टीचर के माध्यम से, मैकेनिकल टीचर के माध्यम से स्टडी करेंगे, आप सोचो वो कितना कुछ मिस करने वाले हैं. What the great they are going to miss. Okay, you all had fun going to school, meeting and helping each other. In the end, we come to know that this is an imagination of a young girl named Margie who comes to know that their ancestors used to go to school. All the children used to study together. She feels that they all had a lot of fun when they went to school. So, when we read the story, we feel that school life is very good and we are fortunate that we have real schools where we go meet friends and get a chance to study together. That education system in which a child learns alone in a visual classroom that has been set in their home itself with no friends, with no fun, that really will be boring one. So in this way we have tried to I have tried to give you a good or a proper view of the future schools. About that we are going to learn in this story. So students, let us start the chapter. Paragraph 1. Here, Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. मार्गी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. हम बता दें, मार्गी इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है. सी इज द गर्ल ऑफ 11 years ऑफ एज. सी रोट अ डायरी ऑन द नाइट ऑफ 17 May 2157. वो 2157 के 17 मई की रात को एक डायरी एंट्री करती है. राइट नाउ वी आर लिविंग इन 2020. As told earlier, the story is set in the future and it is set in the year 2157. So almost 1.5 century, that is around 140 years from now. आगे आने वाले टाइम में 140 साल के बाद जो होगा, ओके, उसके बारे में ये कहानी है. तो उसकी डायरी में जो डेट पड़ी हुई है वो 17 मई 2157 की डेट पड़ी हुई है. At that time, Margie writes an entry in her diary that she writes. उसने उस दिन डायरी में लिखा, she wrote what? Today Tommy found a real book. आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. And she is feeling so strange because in her times real books do not exist. वो ये रियल बुक के कॉन्सेप्ट से काफ़ी सरप्राइज थी, वो काफ़ी स्ट्रेंज फील कर रही थी क्योंकि उसके टाइम में रियल बुक मतलब जिस तरह की बुक हम लोग के पास होती है, उस टाइम में ऐसी बुक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी. दे ओनली हैव ई बुक्स, द वर्चुअल बुक्स. सो बुक्स इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिंट ऑन पेपर
आर एक्सटिंक्ट। उस समय तो आज के जो फॉर्मेट पे प्रिंटेड जो बुक्स होती हैं, पेपर पे प्रिंट की हुई बुक्स, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि उस समय तो ई बुक्स होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरा रिटर्न कंटेंट जैसे अभी आपको मिल रहा वैसे मिलेगा। मार्गी इज एस्टोनिश्ड टू सी अ रियल बुक। मार्गी इस तरह की जो रियल बुक थी उसको देख करके सी वॉज हाईली एस्टोनिश्ड, बहुत ज़्यादा एस्टोनिश थी। नाउ इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गी इज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर हियर। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को रिमाइंड करती है। सी रिमेंबर्स आर दैट सी इज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर. His grandfather has once told to her that his grandfather studied all the books that were printed on paper. Try to understand. मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर रियल बुक से पढ़ते थे, ऐसी बुक्स जो कि पेपर पे प्रिंटेड होती थी, जैसी बुक्स हम लोगों के पास आज सामने है वैसी बुक्स। हम लोग वास्तव में 2157 के ग्रैंडफादर ही होंगे। सो दे वर प्रिंटेड ऑन पेपर। सो दिस काइंड ऑफ अ बुक इज हिस्टोरिकल और एंशियंट फॉर देम। इस तरह की जो बुक थी उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए क्या होंगी, हिस्टोरिकल होंगी या एंशियंट बुक्स ही होंगी। ओके, सो दैट इज वाई इट वॉज अ वेरी ओल्ड, काफ़ी पुरानी बुक थी ये। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was time when all stories were printed on paper. उनके ग्रैंडफादर ने बताया था मार्गी के कि उसके टाइम में जो स्टोरीज होती थी वो इस तरीके से पेपर पे प्रिंटेड हुआ करती थी। एंशियंट, समथिंग विच दे कैन नॉट बिलीव, दे कैन नॉट इमेजिन। ये कुछ ऐसी बात थी जिस पे ना तो वो बिलीव कर सकते थे, नीदर कैन दे इमेजिन, जो कि उनके इमेजिनेशन से भी परे थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. Very interesting lines are these. They turn the pages when they Margie is talking about the book, जो book टॉमी को मिली थी, the book that Tommy had found. She began to turn those books. उन बुक्स के पेजेस को वो टर्न करना शुरू किए। मार्गी उस बुक के बारे में बात कर रही है। She says that the pages of the book had turned yellow since the book was so old. ये किताब काफ़ी पुरानी थी तो इसके जो पेजेस थे दैट हैड टर्न्ड येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, इसमें ढेर सारी फोल्ड्स पड़े हुए थे। दे हैड बीन क्रस्ड एज इट वॉज वेरी ओल्ड। ओके, सो द चिल्ड्रन फाउंड इट वेरी फनी टू रीड द वर्ड्स। इस तरह की बुक्स में पढ़ना उनको काफ़ी फनी लगा। इट वॉज ऑफुली फनी। और फनी क्या था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। उसको उनको देख के काफ़ी फनी लगा कि अरे यहाँ तो जो वर्ड्स हैं वो स्टिल रहते हैं। क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं उसमें भी वर्ड्स तो स्टिल रहते हैं ना। हाँ, हमारे लिए कॉमन सी बात है। बट दो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जिन्होंने ऐसी कोई बुक पढ़ी नहीं, कभी देखी नहीं, उनके सामने तो मूविंग वर्ड्स होते हैं ना। हम स्क्रॉल करते तो मैटर ऊपर या नीचे होता है, स्क्रॉलिंग करने के बाद मैटर वहाँ पे पेजेस टर्न तो नहीं होते। हम जब कंप्यूटर पे या की स्क्रीन पे पढ़ते हैं या मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो वहाँ पर पेजेस हम टर्न नहीं करते बल्कि वहाँ पे स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन।
तो वहाँ पे वर्ड्स स्टिल नहीं होते, वहाँ पर वर्ड्स मूविंग होते हैं. So hence that was funny for the children. The children found it very funny to read the words which stood still. Now, what does it mean by those words that stood still? As the words were printed on the pages, they did not move. On the other hand, the books that Margie and Tommy read were online. जो मार्गी एंड टॉमी जो बुक्स पढ़ते थे वो क्या होते थे, वो ऑनलाइन होते थे, ई बुक्स होते थे. तो ई बुक्स तो स्क्रीन पे खुलते हैं, एंड वेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट हैड व्हेन दे read it at the first time. So so in the ebooks, how it happens, the text keeps on moving as your screen moves, but it was different in the books printed on paper. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. This was very strange experience for the children. ये इन बच्चों के लिए काफ़ी strange experience था. When you have a book which is printed on paper, जब आपके पास ऐसी बुक होती है जिसको कि पेपर पे प्रिंट होती है, तो क्या होता है, whenever you flip the page you get to see the same thing written on the pages. पेज नंबर 7 पे जो मैटर लिखा है that will remain as it is each and every time when you will open it. हर बार, जितनी बार भी आप खोलेंगे, पेज नंबर 7 पे वही वर्ड्स लिखे रहेंगे. लेकिन ऑनलाइन जो बुक्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है. When you have a book which is printed on paper, whenever you flip the pages you get to see the same thing written on the pages. On the other hand, in an e-book the text keeps on changing on the screen. स्क्रीन को अगर हम एक पेज मान लें तो पेजेस चेंज होते जाते हैं. आई मीन पेज तो वही रहता है, जो स्क्रीन आपके सामने खुली है वही पेज है, उसमें हम जब स्क्रॉल करते हैं तो वर्ड्स चेंज होते रहता है. ठीक है, अभी तक उस स्क्रीन पे, मानिए अगर उसको पेज मान लें तो उस स्क्रीन पे अभी तक पेज नंबर 1 था, अभी पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, मीन स्क्रीन वही है, सेम स्क्रीन है. यहाँ पर स्क्रीन आई मीन जो पेज है वो चेंज करो तो मैटर होता है. द स्क्रीन इज द सेम, you have the same screen in front of you, but the text keeps on changing. So wherever you go back, the text is different. आप जहाँ कहीं भी जाएंगे टेक्स्ट आपको डिफरेंट होंगे. सो गी से टॉमी, ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन है. गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस टॉमी डिसलाइक द प्रिंटेड बुक्स. टॉमी जो था वो जो है प्रिंटेड बुक्स को डिसलाइक करता था. ही सेड दैट इट वाज अ वेस्ट बिकॉज ही फेल्ट दैट व्हेनेवर यू कंप्लीट रीडिंग अ बुक यू हैव टू थ्रो इट अवे. उसने कहा व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. जैसे हम लोग अभी करते हैं, क्लास 6 की जो बुक्स हैं वो हमारे लिए क्लास 7 में काम की नहीं रहती, हम उन्हें फेंक देते हैं, हम उन्हें कहीं कुछ कर देते हैं. सो इट्स अ वेस्ट अकॉर्डिंग टू हिम. ये तो वेस्ट था उस समय के लिए. यू कैन नॉट हैव सम डिफरेंट स्टोरी रिटन ऑन द सेम बुक. आप उसी बुक में कोई और कहानी नहीं लिख सकते हैं. ऑन द कंट्रेरी, उसके अगेंस्ट अगर हम उन दिनों की स्टोरीज, उन दिनों की बुक्स की बात करें, our television screen must have had a million books on it. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे तो मिलियन बुक्स होते हैं. इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, वो तो और भी कई चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं कंप्यूटर स्क्रीन को हमें फेंकना नहीं पड़ता, जबकि इन बुक्स को तो फेंक देना पड़ता. कंप्यूटर स्क्रीन वॉज वेरी गुड बिकॉज द सेम स्क्रीन हैड शोन हिम मैनी बुक्स एंड स्टिल ही कुड रीड मैनी मोर ऑन इट. ही वुड नॉट हैव टू थ्रो दैट स्क्रीन अवे व्हेन वंस ही हैड रेड अ पर्टिकुलर स्टोरी. उन्हें उसको फेंकना नहीं पड़ेगा. सो इन दिस वे students, today we have done up to here. We shall continue with this in our next class. Thank you. Have a nice